platform. So I'm here again with another session, that is newspaper discussion, readers prime session. So let's begin with that. इसमें हम बस newspaper articles की पूरा समरी करते हैं, how to read the newspaper, कौन कौन से articles important हैं, कौन से पढ़ने हैं, उनकी थोड़ी सी समरी, थोड़ा background. That's what we talk about in short, right? So let's begin. The very first page, today's first page, 21st January, Indian Express. पहले पेज पर very first news is America afresh. America afresh. As you know that Mr. Joe Biden has been sworn in now as the 46th president of America, and Miss Kamala Harris has been the vice president now. She has become the vice president. So this is a fresh start after Mr. Trump. So this news is all about that only, all these swearing in ceremony and everything. At DC turns page on Trump, Delhi works on reopening chapter, we also like deciding everything, right? What would be the significance of this change for India? इस तरह से बातें यहाँ हो रही हैं. Biden Harris in charge. Obviously now the Biden Harris की जो president and vice president की जोड़ी है, they will be in charge. It means they will be ruling America. So we will lead not by example of our power, but power of example. That's what he said as a a punchline that will not only show the power, but even will make some changes, some examples. Now center blinks. Next meeting with farmers tomorrow. दूसरे दिन अगली मीटिंग होनी है. इसमें सेंटर ब्लिंक्स मतलब सेंटर ने कुछ चीज़ों पे एक्सेप्ट किया है, कंसेशन वगैरह देने की बात मानी है. लेट अस कीप लॉज ऑन होल्ड फॉर 18 months. That's what the central government has suggested, कि we'll keep the laws on hold for 18 months. So 1.5 years, all these farm laws will be on hold. That's what has been said by the central government. That's what has been proposed by the sub-central government. Thus region says center blinks, means they actually accepts this to keep it on hold for at least 18 months, right? Farm joint panel. There would be a joint panel will be formed to discuss that, all those changes. That's what has been proposed by the government, right? So now the farmers union will decide on that. They will have meeting and they'll come back with the acceptance or whatever the changes they have, like whatever they decide to go ahead with, right? But this again, this article talks about that, what the central government has proposed to the farmers union. Right, we expect to move towards a solution, says Minister Tomar. So agriculture minister has said that we expect to move towards a solution. तो हम उम्मीद करते हैं कि हम एक हल की तरफ, एक समाधान की तरफ मूव करें. इस तरह से बात हुई. फर्स्ट टाइम फार्मर्स डोंट रिजेक्ट द ऑफर. पहली बार ऐसा हुआ कि फार्मर्स ने ऑफर को रिजेक्ट नहीं किया है, एंड दे सेड दैट वी विल डिस्कस एंड देन कम बैक. तो इस न्यूज़ का भी क्रक्स पूरा हमें समझ में आ रहा है, बिकॉज दिस हैज़ बीन द ऑन गोइंग प्रोसेस फॉर लॉन्ग टाइम नाउ. काफ़ी दिनों से ये प्रोसेस से पूरा चल रहा है प्रोटेस्ट, फार्मर्स का प्रोटेस्ट जो है यू फार्म लॉज को लेकर. आगे हम अगर न्यूज़ आर्टिकल्स देखें तो बैंक्स रेड फ्लैग. बैंक्स का जो है एक प्रॉपर रेड फ्लैग है, ये लाल झंडा उन्होंने दिखाया, कहने का मतलब द डेंजर साइन. व्हाट इज दैट डेंजर साइन? इज लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स इन पैंडेमिक टर्निंग एनपीएस. तो उनका कहने का मतलब है कि जो भी लोन्स एडवांस किया गया था स्ट्रीट वेंडर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो छोटी चीज़ें बेचते हैं रोड के किनारे, ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को क्या हुआ, उनको जो लोन्स दिए गए थे, दे टर्निंग इन पैंडेमिक के दरमियान जो दिया गया था, दैट इज टर्निंग इन एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. वो बैड लोन में टर्न हो रहा है, बदल रहा है, मतलब वो वापस नहीं आ रहा है. सो दिस न्यूज़, ये भी न्यूज़ हमें समझ में आ रही है कि एनपीएस और बैड लोन्स के बारे में काफ़ी दिनों से डिस्कशन हो रहा है. अलग अलग आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, हमने एडिटोरियल पे भी आर्टिकल्स पढ़ा, क्योंकि अभी बजट आने वाला है. तो उसको देखते हुए, बजट को देखते हुए, बैंकिंग सेक्टर में पूरी क्लीनिंग करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर को प्रॉपर रास्ते पे लाने के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी आएगी, एनपीएस और बैड लोन्स की प्रॉब्लम जो है, जो बहुत ही माउंटिंग प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करने के लिए क्या पॉलिसी रहेगी, इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं. हमने एडिटोरियल्स पे भी आर्टिकल पढ़ा था और फर्स्ट पेज पे भी इस तरह के सजेशंस आते रह रहे हैं. तो उसी की कड़ी में ये भी है कि जो लोन्स दिए गए थे इन स्ट्रीट वेंडर्स को, वो भी एक तरह से एनपीएस में टर्न हो रहा है. पैंडेमिक के दरमियान, खासकर महामारी के दरमियान, कोरोना महामारी के दरमियान जो लोन्स दिए गए थे, दैट इज टर्निंग इनटू एनपीएस, मींस उनका जो रिटर्न आना चाहिए वो आ नहीं रहा है. अगला है हमारा टू स्निप्ड सीन्स इन तांडव marks government's entry into OTT space.
सो कहने का मतलब ये कि भाई दो जिस तरह से सीन्स रिमूव किए गए हैं तांडव मूवी से, इस तरह से नाउ अब गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस एक तरह से ओटीटी स्पेस में बढ़ता है। ओटीटी स्पेस में भी गवर्नमेंट की एंट्री होती है इसी के साथ, पहला पहला इंस्टांस है, तो इसलिए इसके बारे में न्यूज़ कही गई है इसके बारे में। हाँ, नाउ एससी रूल्स आउट रिव्यू ऑफ आधार ऑर्डर विद वन डिसेंट ऑन मनी बिल। सो सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया है कि कोई रिव्यू करेंगे आधार का जो ऑर्डर था पहले, जो इसमें कि मनी बिल वाला जो केस हमारा कोर्ट में गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक डिसेंट के साथ कि हम रिव्यू नहीं करना है, इस तरह से रूल आउट कर दिया मनी बिल वाला इशू, क्योंकि आधार बिल को मनी बिल की तरह पार्लियामेंट में पेश किया गया था, इफ यू रिमेंबर राइट। तो दिस वाज द केस। अगला है न्यूज है इसमें, इन हीटेड वेस्ट बंगाल बैटल अ न्यू बॉइलिंग पॉइंट, श्राइन हेड विल अनाउंस अ पॉलिटिकल फ्रंट टुडे। ये पश्चिम बंगाल के बारे में है कि वेस्ट बंगाल में श्राइन हेड एक रिलीजियस हेड है मिस्टर पीरजादा सिद्दीकी, वो भी उन्होंने अपनी पार्टी अनाउंस किया है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। कुल मिला के पहले पेज की स्कैनिंग करने के बाद हमें समझ में आया कि जो बड़ी न्यूज़ हैं, बड़ी खबरें हैं, उनमें यूएस में जो चेंज ऑफ गार्ड है, जो चेंज ऑफ लीडरशिप है, उसकी बारे में बात है। सेंटर ने जो एक तरह से एक्सेप्ट किया है, सेंटर ब्लिंक्स फॉर 18 मंथ्स डिले पुटिंग द फार्म लॉज ऑन होल्ड फॉर 18 मंथ्स, उसके बारे में है। बैंक्स ने जो एनपीएस जो स्ट्रीट वेंडर्स को जो लोन दिए गए थे अभी पैंडेमिक के दरमियान, वो किस तरह से एनपीए में बदल रहे हैं, उसके बारे में है यही सब। और इसके अलावा मनी बिल वाला जो इशू था आधार बिल को लेके, आधार बिल को मनी बिल की तरफ पार्लियामेंट में पेश किए जाने का जो इशू था कि दिस इज एक्चुअली नॉट द प्रॉपर प्रोसीजर, क्योंकि मनी बिल नहीं है, इस बात को चैलेंज किया गया था, उसको रिव्यू करने की बात आई तो उसको भी रूल आउट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसेंट के साथ। मतलब एक जज का जो है उसमें डिसेंटिंग ओपिनियन है। तो इस तरह से हमारा एक रहा। बाकी तांडव मूवी में दो जो सीन काटे गए हैं, उसके साथ ही ओटीटी स्पेस में भी गवर्नमेंट की एंट्री होती है, इस बारे में बात हुई है। दैट्स ऑल। तो ये रहा हमारा पहले पेज का पूरा स्कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। इफ वी मूव टू द सेकंड पेज पे फर्स्ट पेज की न्यूज का बस केवल होता है। सी, ये जो हम सेशन करते हैं ऑन ये सब वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए होता है राइट, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में न्यूज़ आर्टिकल के नहीं जाते, बिकॉज ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं करियर प्राइम के पुराने भी, दैट्स अ वन डे एग्जाम प्लेटफॉर्म राइट, सो दैट्स रीजन वी डोंट गो इन डिटेल। बहुत ज़्यादा हम जो एडिटोरियल आर्टिकल्स भी होते हैं उसमें बारे में भी हम सिर्फ इतनी बात करते हैं। मैं बता ज़रूर देता हूँ कि यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो भी बच्चे रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए और क्या करना ज़रूरी है, कौन सा आर्टिकल ऐसा होगा जो रीड करना उनके लिए बेनिफिशियल होगा, खासकर उनके आंसर राइटिंग में। कौन कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें लिखे गए टर्मिनोलॉजी, लिखी गई बातें, लिखे गए लॉजिक, लिखा गया जो और जो जार्गन्स है या फिर और तरह के जो तर्क हैं वो उनके आंसर को सप्लीमेंट करेंगे, ये मैं बता देता हूँ। बट आई डोंट डिस्कस मच इन डिटेल सम न्यूज़ आर्टिकल्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस राइट, क्योंकि वनडे एग्जाम के स्टूडेंट्स को मोस्टली रिटन एग्जाम ज़्यादा नहीं होता राइट, तो उनको आंसर राइटिंग इस तरह से नहीं करनी होती, खासकर इलाबोरेट आंसर राइटिंग राइट। सो दैट्स रीजन आई डोंट गो मच इन डिटेल राइट। सो इफ यू वांट यू कैन राइट, यू कैन मैसेज, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ समरी कर रहे होते हैं और कौन सा आर्टिकल पढ़ सकता है हमारा स्टूडेंट और कौन सा आर्टिकल छोड़ने वाले हैं जो पढ़ने वाले नहीं है, हम इतनी बातें कर रहे होते हैं। थोड़ा थोड़ा हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, दस आर पर्पज राइट। सो अगर कहीं पे स्टूडेंट्स को कुछ डिटेल चाहिए होगा तो यू कैन आस्क, वी माइट गो इन डिटेल राइट, विल डू दैट। Now we'll reach immediately to the editorial page. So this is our editorial page, right? The editorial page. So on editorial page from the Express team, the very first article which we see, that is neighbors pride. Neighbors pride, पड़ोसी का प्राइड, इस तरह से ये आर्टिकल लिखा गया है, जैसा कि टाइटल से ही काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। सो नेबर्स प्राइड की अगर हम बात करें, so in South Asia at least, right, so India being a bigger country and again being a leader in manufacturing of medicines and all, तो खासकर अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में इंडिया का अच्छा खासा अच्छी खासी पोजीशन है। उसमें हुआ क्या, ये पूरा वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है। इंडिया स्टैंड्स टू एनहांस इट्स स्टेटस, सो इंडिया एक तरह से अपना स्टेटस जो है, अपना रुतबा बढ़ाएगा, एनहांस करने की स्थिति में है एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह, बाय सप्लाइंग कोविड वैक्सीन्स को सप्लाई करने के से टू कंट्रीज इन साउथ एशिया के देशों में। साउथ एशिया के कई सारे कंट्रीज में वैक्सीन सप्लाई भी की गई है इंडिया के द्वारा, एज यू नो,
राइट। भूटान, मालदीव्स, इन सब जगहों पे तो भेजा ही गया, कई सारी कंट्रीज उसी के बारे में पूरा लिखा गया है। सो ये आर्टिकल, how this is a very good gesture in the time of pandemic by India. India being like anyway the manufacturer of large scale manufacturer of medicines, एक तरह से इंडिया को वर्ल्ड की फार्मेसी भी बोलते हैं इसी वजह से, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा इस तरह का रिसर्च और एक तरह से फॉर्मेशन, हम बात करें अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है मेडिसिन की, खासकर लो कॉस्ट मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन। सो उन जेनेरिक मेडिसिन की सप्लाई की वजह से अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी खासकर इंडिया की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, राइट। और भी दूसरे इस तरह के डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिनको कि लो कॉस्ट मेडिसिन, जहाँ की पॉपुलेशन को बहुत ज़रूरी है। इस तरह से इंडिया हैज़ लाइक गुड रेपुटेशन बीट इन मिडल, इधर आपका अफगानिस्तान और दूसरी कंट्रीज़ में, इधर हमारे पड़ोस के कंट्रीज़ में, और यहाँ तक कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर को लेके भी बहुत आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ के लोग इंडिया आते हैं इलाज के मामले में। मतलब कहने का है कि इंडिया की जो स्टेटस है, इंडिया का जो स्टैंडिंग है, इंडिया का जो रिकॉग्निशन है, खासकर हेल्थ केयर के मामले में काफ़ी अच्छा है, राइट। इलाकों में अगर हम कंपेयर करें वेस्ट के कंपैरिजन में, वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, तो इंडिया में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अफोर्डेबल है और बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है। इस वजह से ऑल द पेशेंट्स एंड एवरीबॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया एंड दे रिलाई ऑन इंडिया, दे लुक टुवर्ड्स इंडिया एज a proper destination for their health care needs, appropriate destination for their all kinds of health care needs। और इसी ट्रेडिशन को जारी रखते हुए इंडिया ने एक तरह से वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत अच्छा काम किया है। वैक्सीन सारी काफ़ी हद तक वैक्सीन जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है और उसी को अपनी नेबरिंग कंट्रीज में सप्लाई करके इंडिया ने बहुत ही अच्छे जेस्चर का उदाहरण दिया है, राइट। विच शुड बी, देयर हैज टू बी अ कोऑपरेशन इन द टाइम ऑफ पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, इसमें सारे देशों को साथ में आके एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। केवल इंडिया ही नहीं, हर कंट्री को, वर्ल्ड की हर कंट्री को एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए इन ऑर्डर टू इम्यूनाइजेशन में जनता के और मासेस के, विच इज़ हेल्पफुल फॉर एवरी कंट्री। दिस कैन नॉट बी डन बाय वन सिंगल कंट्री अलोन, अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन अलोन। दिस मस्ट बी अ कोऑपरेटिव structure, there must be a cooperative structure to achieve this target anyway, this mammoth target, क्योंकि this is a mammoth target, right, this is a big task, क्योंकि पूरी ह्यूमैनिटी इससे परेशान है। तो उसी के बारे में आर्टिकल लिखा गया है, इंडिया की स्थिति को अपलॉड करते हुए, क्योंकि इंडिया ने बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को इस तरह से मेडिसिन सप्लाई करके, तो राइट, वैक्सीन सप्लाई करके। तो ये पूरा का पूरा है कि भाई ये देखो, भूटान, मालदीव्स, इन सारी कंट्रीज़ को अभी तक भेजा जा चुका है। मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, इन सब जगहों पे इंडिया ने वैक्सीन सप्लाई की है। और अभी आगे आने वाले टाइम में श्रीलंका और अफगानिस्तान को भी रेगुलेटरी कुछ प्रोसेस अप्रूवल्स के बाद वहाँ भी अवेलेबल कराया जाएगा। सेशल्स में भी भेजा जा चुका है। तो मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार एंड सेशल्स, ये सारे छोटे नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे इंडिया के, और इन सबको भेज के इट्स अ वेरी गुड जेस्चर, दैट्स व्हाट इज बीइंग अपलॉडेड इन दिस आर्टिकल, राइट। आगे भी यही बात कही है, इस तरह से करने में इंडिया ने एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का परिचय दिया है। और कटिंग एज हेल्थ केयर जो इंडिया में है, वो इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से काम कर रहा है, वो दैट अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, जो मैंने अभी बताया कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स कम फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज फॉर देयर हेल्थ केयर नीड्स इन इंडिया, राइट। इंडिया में आते रहते हैं अपनी हेल्थ केयर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो इस तरह से वेस्ट के कंपैरिजन में बहुत सस्ते दरों में, और मेडिसिन ऑफ साउथ एशिया for medical treatment at the fraction of its cost in the west। वेस्ट में जितनी इसकी प्राइस होती है उसके बहुत ही कम दाम पे इंडिया में सारी मेडिसिन भी मिलती हैं और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी अच्छी खासी गुड रेपुटेशन है इंडिया की, साउथ एशिया में हर जगह, और पाकिस्तान में भी बढ़िया रेपुटेशन है इस मामले में इंडिया की, राइट। सो इंडिया में सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, सारी ये वैक्सीन्स, चाहे वो कोविशील्ड हो और ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाई गई एस्ट्राजेनेका हो, ये सारे के सारे यहाँ बनाई जा रही हैं। तो इन सब को इन सारी नेबरिंग कंट्रीज़ में सप्लाई करके इंडिया इज़ गिविंग अ वेरी गुड जेस्चर फॉर द। एक चीज़ और, इंडिया को बहुत ज़्यादा चेस्ट थम्पिंग नहीं करनी चाहिए। इस बात को लेके इस आर्टिकल में थोड़ा सा आगाह भी किया गया है कि चेस्ट थम्पिंग इज़ नॉट गुड, और चाइना से कॉम्पीट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कौन सी कंट्री को ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, कौन सी कंट्री के साथ ज़्यादा डील्स होती हैं वैक्सीन को लेके, ये इन बातों पर डिपेंड करेगा कि किसकी एफिकेसी ज़्यादा है, राइट। तो इसमें हमें कोई कंपटीशन वाली बात तो है नहीं, ना ही हमें किसी कंपटीशन में जाना चाहिए चाइना के साथ, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के साथ चाइना ने डील करी है सप्लाई करने की, जैसे कुछ कंट्रीज़ ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ भी और भी कुछ कंट्रीज़ के साथ, राइट।
तो उसमें हमें कंपटीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, और हमें चेस्ट थम्पिंग भी नहीं करना चाहिए कि हाँ हमने मदद की, हमने मदद की, ऐसी भी कोई बात बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट, दैट विल हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन आवर रिलेशनशिप. वी शुड नॉट एक्ट एज अ बिग ब्रदरली मैनर. तो वो बातें भी आगाह की गई हैं. तो ये आर्टिकल पूरा यू कैन रीड, क्योंकि हमें अपने पड़ोस के बारे में पता भी होना चाहिए, और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, और किन किन आधार पे क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कहाँ कहाँ हमारे बीच समानता है, ये सारी बात हमें पता होनी चाहिए. तो ये आर्टिकल उन सारे पॉइंट्स पे सही है. दूसरा है हमारा रेजिंग द पिच, द ट्रायम्फ डाउन अंडर इज अ विन टू चेरिश, इंडियन क्रिकेट नीड्स टू बिल्ड ऑन इट. तो ये इंडियन क्रिकेट के बारे में ही पूरा आर्टिकल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की, इस एनालिसिस को ज़रूरत नहीं है. जितना हम पहले पढ़ चुके हैं उतना ही इनफ है. हाउ Rahul Dravid is contributing very nicely by training and guiding the under-19 team and all, ये सब हमें पता है, right? So we have already read that, क्योंकि कल वाला भी एक आर्टिकल था हमारा. तो कुल मिला के ये हमारे किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है. अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें अगर हम, तो लीगल लूपहोल्स. लीगल लूपहोल्स, दिस आर्टिकल इज अगेन व्हाट्सएप का जो चेंजेस आए हैं पॉलिसी में. फ्यूरोर ओवर द व्हाट्सएप्स अपडेटेड प्रिवेसी पॉलिसी, टर्म्स अंडरलाइंस अर्जेंसी फॉर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स टू प्रोटेक्ट डेटा. भाई ये जो पूरा हो हल्ला मचा हुआ है व्हाट्सएप के जो अपडेटेड प्रिवेसी पॉलिसी है उसके ऊपर, जो पूरा घमासान मचा हुआ है इनके टर्म्स के बारे में, उससे एक चीज़ अर्जेंसी, इसके बाद की बहुत ही अर्जेंसी आ गई है. अब क्या कि कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो इंडिया में होना ही चाहिए टू प्रोटेक्ट पीपल्स डेटा एंड प्राइवेसी. इस बात के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, जैसा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें देखा गया है यूरोपियन कंट्रीज में, राइट. तो यहाँ पे नाम भी दिया है कहीं पे, दिस वन, राइट, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेटरी, दैट इज देयर इन यूरोप. उसी की तर्ज पे इंडिया में भी एक कोई रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए टू प्रोटेक्ट डेटा. इसी के बारे में आर्टिकल लिखा गया है. प्रिवेसी हैज बीन अ बिग कंसर्न इन टुडेज टाइम. अभी कई दिनों से ये न्यूज़ में रहा है, देख भी रहे होगे. यू मस्ट हैव बीन फॉलोइंग दैट व्हाट्सएप हैज चेंज्ड इट्स ऑल प्रिवेसी पॉलिसीज, राइट, एंड दे वांट ऑल दोस टर्म्स एंड कंडीशंस. और वो चाहते हैं कि जितने यूजर्स हैं उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप और तुम्हारा ये जो इंस्टाग्राम है, दैट इज ऑल ओन्ड बाय अ सिमिलर सिंगल एंटिटी, राइट. सो इस तरह से वो अब चाहते क्या है कि पूरा वो आपस में अक्रॉस शेयर कर सके आपकी जो जितने भी पर्सनल डिटेल्स और डेटा है. इस बात के लिए दे वांट यू टू एक्सेप्ट देयर टर्म्स एंड कंडीशंस. उसमें चेंजेस हुए हैं कुछ. अब ये चीज एक तरह से दिस इज नॉट वेरी गुड, दिस इज डेंजरस, राइट. सच अ बिग टेक जायंट हैज द पोटेंशियल to manipulate all kinds of information, you know that, right? And this is a concern, this is a bigger concern. केवल इंडिविजुअल लेवल पे ही नहीं कि हर व्यक्ति का जो पर्सनल डेटा है वो तो डेंजर में है ही है, हर व्यक्ति की जो प्राइवेसी है वो तो एक तरह से है ही ओपन, राइट. नोइंगली या अननोइंगली वी ऑल आर शेयरिंग ऑल आवर डिटेल्स ऑन दीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, राइट. हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपनी सारी डिटेल्स, हर कुछ हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, हर कुछ ओपन कर रहे हैं, चाहे हम नोइंगली कर रहे हों या अननोइंगली कर रहे हों. और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई खास रेगुलेशन नहीं है. ये इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस ही है. इवन द गवर्नमेंट्स लेवल, द वर्ल्ड लेवल, गवर्नमेंट्स आर वल्नरेबल नाउ, फॉरगेट अबाउट द इंडिविजुअल. तो अगर सरकारें और राष्ट्र जो है, देश वल्नरेबल हैं इन टेक जाइंट्स की इस प्रेडेटरी उसकी वजह से, अग्रेसिव अप्रोच की वजह से, तो इंडिविजुअल का तो कोई मतलब रोल रह ही नहीं जाता. और खासकर इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाना बहुत ज़रूरी है, और बहुत it's high time now. There must be some action on this, right? So that's what is being said here, कि इस पे कुछ काम किया जाना जरूरी है. So वही है कि earlier this month WhatsApp, the instant messaging platform, unveiled the updated terms of its privacy policy. अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने पूरा अनवेल किया है, पूरा जिनकी प्राइवेसी पॉलिसी के टर्म्स हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए. तो उसी के बारे में पूरा बात है. दिस इज वेरी डेंजरस एंड दिस मस्ट बी रेड, राइट. सो ये रीडेबल है by Facebook companies to make the invasive and precise inferences about users. इन्होंने ये भी बात किया है कि जो बिजनेस पर्पस से यूज कर रहे हैं इंडिविजुअल्स, और जो पर्सनल पर्पस से और फैमिली मैसेजिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इसके बीच भी सेग्रीगेट कर पाएंगे. कौन? आपकी परमिशन के बाद व्हाट्सएप सेग्रीगेट कर पाएगा इस बात को. वो जान पाएगा कि आप कौन कौन से मैसेजेस बिजनेस पर्पजेस से यूज कर रहे हैं, भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, और कितने मैसेज अपने फैमिलीज और इन सबको भेज रहे हैं. मतलब कंप्लीट इंट्रूजन इन योर प्राइवेसी, राइट. दैट्स व्हाट इज बीइंग डन with this terms and condition update. But as users have no option,
बिकॉज 400 मिलियन यूजर्स आर देयर ऑन व्हाट्सएप. व्हाट्सएप पे लगभग 400 मिलियन यूजर हैं इंडिया से ही. अब या तो यूजर्स के पास एक ऑप्शन है, दे एक्सेप्ट इट एंड कीप यूजिंग, या तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करें एंड वल्नरेबिलिटी उनकी प्रॉपर बनी रहेगी. और बनी क्या रहेगी, एक्सेप्ट करते ही दिस विल बी एवरीवेयर, दे कैन यूज योर डेटा. पहली चीज. दूसरी बात ये, या फिर दे कैन शिफ्ट टू अदर प्रोवाइडर्स लाइक टेलीग्राम, या फिर और भी नए नए प्लेटफॉर्म्स जो आजकल आ रहे हैं, अभी डिस्कशन में है, कई सारे तो आ भी चुके हैं, या तो उन पे शिफ्ट करें. बट 4 मिलियन यूजर्स का शिफ्ट होना व्हाट्सएप को छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे, ये कोई स्मूथ प्रोसेस नहीं है और ना ही इतना आसान है. दैट इज अ कंसर्न. एंड सेकंड कंसर्न इज यूजर फ्रेंडलीनेस. जो है, एक तरह से जो यूजर्स हैं वो व्हाट्सएप से बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा, you can say that they are like they have been using, so they have familiarized themselves and they have become used to, you can say they have become habitual now. So immediately, just because of these terms and conditions, they will shift to other platforms. This is suspicious. This is suspicious, not only suspicious, even this is not very smooth. This is not possible, you can say near impossible, and that too such a big and large number of users which are in India. तो कहने का मतलब ये है, इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, अभी गवर्नमेंट की अपील पर, गवर्नमेंट के उस पर जो है व्हाट्सएप ने इसको कुछ दिनों के लिए टाल दिया है. मई तक ये चीज़ टाल दी गई है, बट स्टिल दिस इज अ लूमिंग प्रॉब्लम, राइट. सो दिस मस्ट बी एड्रेस्ड. तो इसमें ऑथर ये भी कहना चाह रहा है कि यूरोपियन यूनियन के तर्ज पे हमारे यहाँ भी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो कम से कम अगर इन प्लेटफॉर्म्स में कुछ की टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंजेस आते हैं, सो दैट रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म विल टेक द कॉल. चाहे ये टेक जायंट्स जो हैं, ये टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वो सारी की सारी सर्विसेज हमारे यूजर्स को ना दें, दैट्स फाइन. उन सारी सर्विसेज का एक्सेस ना मिले, बट एटलीस्ट द डेटा विल बी प्रोटेक्टेड, राइट. एंड दैट मस्ट बी डन बाय एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म विच शुड बी मेड बाय द गवर्नमेंट. इस तरह की एक तरह से यहाँ पे अपील की गई है, इस तरह का सजेशन दिया गया है, उसी तर्ज पे जिस तरह से यूरोपियन यूनियन में ये एजेंसी है. जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, GDPR, अलाउज इंडिविजुअल्स ग्रेटर से ओवर देयर डेटा इवन इन द न्यू व्हाट्सएप रूल. तो लोगों का प्रॉपर से रहेगा इस रेगुलेटरी अथॉरिटी की वजह से, ऐसा है. तो इंडिया टू नीड्स दैट काइंड ऑफ थिंग. तो ये आर्टिकल एक तरह से, this is important in today's scenario, in today's digital age. You must be knowing what is happening, what these big tech giants are doing, जिनको के लेके हम काफ़ी हद तक addicted हैं. We are very much addicted when it comes to WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Every individual, even the youngsters, everybody is hooked, when it comes to these tech platforms. So it's kind of indispensable in today's time. We're doing everything with the help of these platforms. Even now, many of our sessions goes live on Facebook, right, where you see this. तो इसके अपने pros and cons दोनों हैं, benefits भी हैं, नुकसान भी हैं, right. So डेटा शेयर करते समय खासकर it's advisable, हमने कुछ दिन पहले भी एक चीज़ पढ़ा था, agree वाला, I agree वाला आर्टिकल, right. जब भी हमारे पास सामने कुछ भी आता है इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज, उसमें डू यू अग्री वाला ऑप्शन होता है एंड वी इमीडिएटली क्लिक इट, क्योंकि हमारे पास ना तो समय है पढ़ने का और ना ही कई बार हमें वो समझ में आता है कि उसमें क्या लिखा गया है. सो स्पेयर सम टाइम. और वैसे भी इस बात की भी अपील की जा रही है कि आसान बनाया जाए, राइट, जिससे कि आसान तरीके से यूजर्स को, कंज्यूमर्स को समझ में आए कि उस टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा क्या गया है, कौन सी चीज़ों के लिए अलाउ कर रहे हैं, टेक को क्या परमिशन दे रहे हैं वो. ये सारी बातें थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझ में आनी चाहिए. कितना इंट्रूसिव है प्रिवेसी में, कितना डेंजरस है, इसके लिए एक स्टार रेटिंग जैसी बात भी की गई थी कुछ दिन पहले. तो उसी तरह से ये बात है यहाँ पे भी कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी तो कम से कम एक प्रॉपर लेवल पे स्कैनिंग होती रहेगी और लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, एंड दैट मस्ट बी देयर इन टुडेज टाइम. नेक्स्ट आर्टिकल इज द साइबर टैक्स conundrum. डिजिटल सर्विस टैक्स could offer an interim solution. So देखो, अब डिजिटल सर्विसेज जितनी भी हैं, इसके टैक्सेशन को लेकर खासकर डिजिटल कंपनीज के द्वारा हैज़ बीन अ की कंसर्न फॉर G20 कंट्रीज. अब जितने भी ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन सब में एक बड़ा कंसर्न है, खासकर जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं. जैसे मान लो एक कंपनी इज सिटिंग इन US and they are handling all the marketing and digital promotional and digital work, some other company in India. So they are earning profit from India. Even for that matter, an Indian company that is working in some other market and they are earning profit from there. They don't have an office there. ना तो ऑफिस की ज़रूरत है. आप यूएस की किसी कंपनी के लिए अगर काम कर रहे हो, आपका ऑफिस होना ज़रूरी है वहाँ पे. आप ऑनलाइन सब कुछ
come, you can work for them and you can send them and they'll pay you, right? So people earning profit through this manner, through these kind of services. But इसमें हो क्या रहा है? How to do the taxation without any office, without any investment, without any kind of regulation, they're earning profit from other countries, right? And they come, उनके वो किसी भी regulatory norms में आते ही नहीं है. तो ये एक बड़ा कंसर्न है G20 कंट्रीज़ के द्वारा काफ़ी दिनों से. तो उस पर टैक्सेशन के लिए एक डिजिटल सर्विस टैक्स इज प्रपोज्ड. एनीवे दैट्स बीइंग डन. सो दिस आर्टिकल इज आल्सो रीडेबल, राइट. आगे बढ़ते हैं हम. ये दिस इज अबाउट वी शांता द डॉक्टर who died recently. You must be knowing she was Vishanta, who was almost running a cancer hospital, and she brought that cancer hospital from 2 bed to more than 500 beds. So, and she provided an alternative to people living in Chennai and nearby locality in South India, apart from Tata Institute of Sciences and Research. So, Tata Institute के अलावा दूसरा भी ऑप्शन एक तरह से लोगों के पास अवेलेबल था साउथ इंडिया में, कैंसर हॉस्पिटल, जिसमें कि कैंसर को बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से इट वाज ट्रीटेड इन दिस हॉस्पिटल, एंड दैट वाज बीइंग रन ऑलमोस्ट बाय दिस लेडी मिस वी शांता, एंड दैट्स व्हाट शी डाइड. उन्हीं के बारे में है बात, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है. तो इस पे पेज पे हमें जो दिखा 1 2 3, दिस इज व्हाट वी कैन रीड. आगे बढ़े अगर हम आइडिया पेज पे. सो आइडिया पेज पे वी हैव an article after real Donald Trump, no easy answer. तो इस पे हम इतने आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं कि मुझे नहीं लगता किसी वनडे एग्जाम वाले बच्चे के लिए किसी भी काम का है, बेकार है. अगला हमारा डेमोक्रेसीज मॉरल फाउंडेशंस. It is written by Mr. Kapil Sibal, and you know that Kapil Sibal is a politician, right, and a lawyer. A writer, is a senior Congress leader, and is a former union minister. He was a former union minister, so he has written that democracy's moral foundations. Democracy needs some moral foundations as well. That's what he wants to say. It's not just about courts, constitution and law. Society's values needs to be informed by a sense of justice. So this article you can read because you'll get a lot of words, a lot of terminologies, and a lot of other aspects of the democracy, right? So इस तरह से you can read this article as well. इसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन otherwise this is about Bengal politics, so this is not important, right? That's all. So इस तरह से ये रहा हमारा पूरा आइडिया पेज से, वन आर्टिकल ओनली. So there were around 1 2 3 articles at that page, 1 article at this page, 4 articles. Out of these 4 articles you can read 1 or 2, that's all for one day students. The world on the bio, again it's हमारे किसी खास काम का नहीं है. It's about value of vaccine. Again this is explained about all these vaccine and everything in the form of question answer phase नहीं. So इसको anyway वन डे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इतना कुछ खास जरूरी नहीं है इसमें, और बाकी वैक्सीन के बारे में बहुत कुछ जानते हो तुम, because you have read a lot of articles, many articles. If you want to familiarize a little more, somebody who's preparing for some other exams, not for one day exams, they can read. Otherwise this is not very important. So here again don't find anything as such. That's all. So ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर. That is all. 4 articles were there. हमने थोड़ी थोड़ी बातें की. That's all. Have fun. See you in the next class, right?